Hello students, this is Purnima Tyagi here. Welcome to Study Point, and today I am going to explain you a very important topic of writing skills, that is speech writing. Student, speech writing is useful for the students of 9th, 11th and 12th class students, and mostly it is in both the boards, means CBSE and RBSE. That is useful topic for all. So let's start from speech writing. Before starting speech writing, I would like to tell you what is a speech. Speech क्या होती है? A speech is a formal talk that a person delivers to his audience. It must have the capacity to hold the attention of the audience with a proper choice of words, expressions, and examples. At the same time, care should be taken not to deviate from the main subject. You must keep in mind that it is a speech and you need to begin the draft with addressing the audience. And the conclusion should be with a sentence thanking the audience. So students, speech क्या होती है? एक फॉर्मल टॉक होती है जो कि एक पर्सन डिलीवर करता है ऑडियंस के सामने, और इसकी जो है इसके अंदर स्पीच के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि अपनी ऑडियंस का ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. यानी ऐसे चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए, एग्जांपल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों. और उसी टाइम आपको ये नहीं भूलना है कि आपका जो टॉपिक है आप उससे डेविएट नहीं होना है, आपको उससे भटकना नहीं है. यानी जो भी आप अपने व्यूज़ वहाँ पर रख रहे हैं वो रिलेटेड टू द कंटेंट होने चाहिए, जो भी जिस पर भी आप बोलने जा रहे हैं. ठीक है. और लास्ट जब आपको एंडिंग करनी है ऑडियंस को, कंक्लूसिव वे में आप थैंक्स करते हुए ऑडियंस को उसकी एंड करेंगे स्पीच राइटिंग को. हाउ टू राइट अ स्पीच. नाउ द क्वेश्चन इज, स्पीच लिखी कैसे जाती है स्टूडेंट्स? इन एन एग्जामिनेशन नथिंग इज रिटन पर्पजलेसली, है ना. पर्पजलेसली हम एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते. All the writing tasks have a purpose. Before writing a speech, make sure you are writing to inform people, to persuade them, to convince them, or to entertain them. ओके, आपको स्पीच देने से पहले ये भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल श्योर रहना है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने वाले हैं, लोगों को कन्विंस करने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. मतलब उसमें जो भी आपके व्यूज़ हैं, अपने व्यूज़ से आप लोगों को परसुएड करने वाले हैं, यानी उनको मनाने वाले हैं. तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस विल एंश्योर द क्लैरिटी इन द चॉइस ऑफ स्टाइल एंड वोकैबुलरी. और क्लैरिटी जो आपके पर्पस की है वो एंश्योर करती है आपकी क्लैरिटी को, जो आप अपने स्टाइल चूज़ करते हैं, जैसा जैसे आप वोकैब यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पर्पस है, पर्पस के अकॉर्डिंगली आपका selection of words or vocab होना. Speech writing comes as a very long type question that is consist of 10 marks, especially in CBSE students. With the maximum prescribed word limit is for that is 150 to 200 words. Fine. And the format I will tell you here. For opening address and the conclusion, we have decided 1 marks. For content, you will get 4 marks. Expression, you will get 5 marks. Expression is very important, okay? In that all the things are included, just like your handwriting and all these things. And grammatical accuracy, appropriate words and spellings, 2.5. And coherence and relevance of ideas and style, that is also consists 2.5. And total marks that you will get from speech writing, that is 10 marks. Fine. Now we will see here the format of a speech. In order to write a perfect speech, we must be well acquainted with the topic. Okay, टॉपिक का हमें अच्छे से पता होना चाहिए. एंड मस्ट possess a wide range of vocabulary. अपनी vocab भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि हम अपने व्यूज़ देने वाले हैं और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अच्छी वर्डिंग अपने पास होनी चाहिए. A thorough knowledge of the subject, सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए. सम रिसर्च एंड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, और यानी आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप स्पीच में बोलने वाले हैं, कुछ उसमें ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपको इकट्ठे करके रखने चाहिए उनको, जिससे कि वो आपकी स्पीच जो है बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग, बहुत ज़्यादा परसुएडिंग लगे. ओके, सो हेयर इज़ द आइडियल फॉर्मेट एंड टिप्स टू टेल यू राइट योर परफेक्ट स्पीच. यानी यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स दूंगी आपको, जिससे कि आप अपनी स्पीच बहुत परफेक्टली लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव.
और परफेक्ट स्पीच मस्ट कंसिस्ट ऑफ, एक परफेक्ट स्पीच जो होती है बच्चों वो कैसी होती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें। परफेक्ट स्पीच में ओपनिंग लाइन होनी चाहिए। अब ओपनिंग लाइन यानी जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स सैल्यूटेशंस, उसमें आपका सैल्यूटेशन भी होता है, इंट्रोडक्शन होता है और टॉपिक होता है। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स, नेम, स्कूल नेम एक्सेट्रा। और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड देयर टू मेंशन द नेम ऑफ योर स्कूल, योर ट्रू नेम, व्हाटएवर इज दैट। ओके, आपको अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, ऑल द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन हियर। जस्ट लाइक आपको कैसे बिगनिंग देनी है, आपकी ओपनिंग लाइन कैसे स्टार्ट करनी है स्पीच राइटिंग में, यू कैन सी हियर एग्जांपल आई हैव गिवन यू बाय द साइड। यू कैन सी जस्ट लाइक सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, हियर यू विल राइट द नेम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, आई के बाद में यहाँ नेम लिखना है, लेकिन वो नेम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, नॉट योर एग्जैक्ट नेम। ओके, सो आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक। सो टॉपिक जो कि दिया गया है आपको क्वेश्चन में, और यू विल हैव टू राइट दैट। सपोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो यू विल राइट इन डबल कॉमा, यू विल राइट दैट टॉपिक, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड लाइक दैट। और यू कुड स्टार्ट विद अ कोट। ओके, आप किसी कोटेशन से भी आप अपने स्पीच को स्टार्टअप दे सकती हैं। जैसे सपोज मैं लिखने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर, है ना, टाइम की इम्पोर्टेंस मेरे स्पीच मुझे लिखनी है, तो मैं कैसे करूँगी, उसको स्टार्टअप दूंगी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो लाइक दैट, मतलब कोई भी आप अच्छी कोट से आप अपने टॉपिक को स्टार्टअप दे सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू। एंड देन गो टू with the salutation and the introduction, and उसके बाद आपको क्या करना है, go with the salutation as I have given here, respected principals, teachers, है ना, इस तरह से आपको शुरू करना है। Fine. After opening line, we will read body. Okay, so body is also an important part, very important part of a speech. It is the main part of your writing piece. It is always prescribed that you begin with a short introduction on the topic. Okay, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको टॉपिक के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। इट इज मेंट टू बी प्रिसाइज, और वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, हमेशा लिखते हुए स्पीच आपको ध्यान रखना है कि आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पीच आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से आप यानी स्ट्रांगली, यानी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, इंप्रेसिव इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से आप अपनी स्पीच को स्टार्टअप दें। यू कैन अकोमोडेट द वीकर वंस इन बिटवीन एंड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी जो आपको लगता है कि आपके जो वीक व्यूज़ हैं, तो उनको आप बीच में कहीं पर ऐड कर दें, और लास्ट में फिर आप वापस से एक बार अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यूज़ करें। फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन्स, है ना, आप 1 या 2 लाइन में अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, है ना, आपको बहुत ध्यान रखना है कि टॉपिक से भटकना नहीं है। देयर आर चांसेस यू मे गेट आइडियाज लिंकिंग फ्रॉम वन टू अनदर दैट मे डेविएट यू फ्रॉम द मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलते हैं, क्योंकि आप अपने व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, अब व्यूज़ आपके उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब आप कई बार भटक भी सकते हैं, आप उसमें इधर से उधर हो गए, तो यहाँ पर वो आपकी स्पीच को एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। तो आपको अपने व्यूज़ देते हुए बहुत केयरफुली अपने व्यूज़ वहाँ ऐड करने हैं, अपने आइडियाज़ केयरफुली ऐड करने हैं, जिससे कि आप अपने टॉपिक से भटके नहीं, है ना। एंड यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो, इन सब को करने से आपको बचना है, स्ट्रिक्टली आपको ये सब नहीं करना है। स्पीच जो परफेक्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, और परफेक्ट स्पीच मस्ट कंसल्ट, ओके, परफेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट वेयर एवर यू एलोबोरेट a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well. Now it would be great if you could add a few quotes related to motivate the people to take action. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या करना है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को एलोबरेट कर रहे हैं, तो जब आप स्पीच दे रहे हैं, तो यू विल हैव टू मेंशन द स्टेप्स दैट यू विल हैव टू टेक फॉर द इम्प्रोवाइज द सिचुएशन। जो सिचुएशन है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं, दैट ऑल्सो शुड बी मेंशन इन अ प्रॉपर स्पीच, ठीक है। आपको सजेस्ट करने हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस उसके साथ साथ,
ठीक है। और फिर ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी स्पीच को जब स्टार्टअप देंगे तो एक उसके अंदर आप कुछ एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, और अपनी स्पीच की जो थीम है उसको क्लैरिफाई करने के लिए बीच में भी जहां पर आपको रिक्वायर्ड पड़े अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, तो आप वहां कोटेशन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपनी तरफ लोगों को मोटिवेट कर सकें और लोगों को अट्रैक्ट कर सकें आपकी स्पीच की तरफ। ठीक है। Next are the value points. Fine. Greet your audience and introduce the topic you are speaking on. आपको वैल्यू पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, ऑडियंस को ग्रीट करना है, इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को जो आप बोलने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट जो है किसी भी स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज दिस पार्ट विच डिसाइड्स द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच। ये वो पार्ट होता है स्टूडेंट्स जो डिसाइड करता है आपकी स्पीच के इम्पैक्ट को, यानी उसके इंप्रेशन को। फाइन। डू नॉट गिव अ सेपरेट टाइटल फॉर द स्पीच। स्पीच के लिए सेपरेट टाइटल देने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है वही हमको लिखना है। ओके। कीप इन माइंड एज ऑलरेडी स्टेटेड द ओकेजन ऑफ द स्पीच एंड द नेचर ऑफ द ऑडियंस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी ओकेजन आपको बताया गया है स्पीच का, वही ओकेजन रखना है आपको। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो आपको वही ओकेजन रखना है, और आपको ऑडियंस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीच लिखनी है। ठीक है। सपोज आप स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के सामने बोल रहे हैं, तो आपकी वर्डिंग कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। सपोज आप है ना कहीं पर पार्लियामेंट्री स्पीच देने जा रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल की कहीं स्पीच आपको देनी है, तो वहां पर आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके कुछ स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है इन चीज़ों का। एंड इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लेंथी। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है। द मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल। जिस बात के बारे में हम कन्वे करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्विकली और जितना हो सके पॉसिबल वे में फटाफट हमें अपने टॉपिक पे आना चाहिए। यूज कंक्रीट टर्म्स एंड टेंजिबल एग्जांपल्स। आप उसके लिए कंक्रीट टर्म्स और टेंजिबल एग्जांपल्स लें। अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस विच आर क्वाइट वैग, और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस यूज करने को बिल्कुल अवॉइड करें जो कि अनक्लियर हो। यूज सिंपल एंड फेमिलियर लैंग्वेज। एंड द कंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ स्पीच। एक स्पीच के सक्सेस के लिए कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो यू विल हैव टू मेंशन दिस एट द एंड। ओके। सो गिव योर ऑन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक इन अ टेलिंग मैनर। मार्किंग scheme is the same as for the article. Write thank you at the end of your speech. Now the question is here. As Saurabh Aruna of St. Mary Public School write a speech to be delivered in a school assembly highlighting the importance of cleanliness, suggesting that the state of cleanliness reflect the character of its citizen. So ये topic है आपका, then you will have to write it. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, हमने पहले टॉपिक लिख लिया। किस टॉपिक क्या है अपना? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। हेडिंग सजेस्ट कर दी। देन इन द वर्ड्स, इंट्रोडक्शन शुरू हो गया अपना। इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ले, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पर कोटेशन दे दी। अब हम सैल्यूटेशन पर आएंगे। ओपनिंग लाइन्स, ये हमारी ओपनिंग लाइन्स है स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग respected principal, teachers and my dear friends. Today I, Saurabh Aruna, stand before you all to highlight the importance of cleanliness. You all, cleanliness, अब ये यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है बेटा बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। Cleanliness is the state or quality of being clean or being kept clean. It is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to the poor hygienic condition. It is crucial for physical well-being and maintaining a healthy environment at home and at school. An unclean environment is an invitation for a lot of mosquitoes to breed in and spread deadly diseases. On the other hand, not maintaining personal hygiene leads to a lot of skin problems and decreased immunity. The habits learnt at a young age get
embedded into one's personality. Even if we inculcate certain habits like washing hands before and after meals, regular brushing and bathing from a young age, we are not bothered about keeping public places clean. For this, on 2nd of October 2014, the Indian Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign, that is the name of Swachh Bharat Abhiyan, to provide sanitation facilities to every family, including toilets, solid and liquid waste disposal systems, village cleanliness and safe and adequate drinking water supply. Teachers and students of the schools are joining the Clean India campaign very actively with great fervor and joy. And now, beta, solution. Now we will see here the solution, the conclusive lines we can say. Good health will ensure a healthy mind, which will lead to increased overall productivity, resulting in higher standard of living, thus developing the economy. It will boost India's international image, thus a clean environment is a great environment with less people falling ill. Cleanliness hence is defined to be the emblem of purity of mind. Okay, then at last I have written here thank you. So likewise you can write the best speech. So students, my topic of speech writing is completing here. I hope you quite understood that how you will have to write a good speech. Thank you and have a nice day. One thing I want to tell you student, please, if you like my video, if you understand through this, then please like, share